Okay, can you see the screen? All right. Tomorrow we are discussing the specific heat. Yesterday we were discussing the specific heat, which is given by क्या formula है? S is equal to delta Q by delta T. Okay, 1 minute. Where it is gone? Delta Q by delta T. Okay. Specific heat is delta Q upon M into delta T. है ना? Now heat supplied is same, mass is also equal. So these two things are equal. Specific heat is inversely proportional to change of temperature. Greatest पूछा जिसमें कम change of temperature होगा, that is the answer. इसमें 3 हो रहा है और इसमें 4 हो रहा है. Therefore, A. Since less change of temperature, है ना? देखो ऐसे भी समझ सकते हैं. तो सप्लाइड सेम है, मास भी सेम है. जिसकी स्पेसिफिक हीट मोर होगी उसका चेंज ऑफ टेम्परेचर कम होगा, तभी तो प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू हीट सप्लाइड, है ना? दिस इज गुड क्वेश्चन. क्लियर? ए द आंसर. Now we are going to see the principle of calorimetry. It is very basic principle. Is in case of isolated system where no heat can come from outside or heat cannot go outside. If we keep the two bodies hot and cold nearby, so heat will be transferred from hot to cold body till temperature becomes equal. Therefore, heat given by hot body is equal to heat received by cold body. Heat lost by hot body is equal to heat gain. एक का लॉस होगा उतना ही गेन दूसरे का होगा. It is similar to the you are transferring your money from one account to other. एक में कम हो जाएगा, दूसरे में उतना गेन हो जाएगा. एक में लॉस और डिक्रीज, दूसरे में गेन. Isolated system, provided no heat should go anywhere else, and provided you should not that spend your money anywhere else. Take out from one bank account, put it into the other. Net banking से करना है. No loss anywhere else. All right. So device in which heat measurements can be done or even specific heats can be calculated is called calorimeter. Calorimeter. Container होता है कॉपर, उसको फिर इंसुलेट कर देते हैं चारों तरफ से. Heat should not be lost. जितनी हीट दे रहे हैं पूरा उसके अंदर रहनी चाहिए. Calorimeter is the container, insulated container in which experiments are done. And उसमें that lab में you can see it. Now we'll see the questions based on the calorimetry. Heat given by one body is equal to heat taken by the other body, है ना? जैसे ये क्वेश्चन है, देखो सॉलिड स्फीयर है 0.47 kg का. Place for the sufficient time on the vessel containing boiling water. Boiling water का टेम्परेचर कितना होगा? 100 डिग्री तक उसको हीट किया है ना. So that अच्छा दिया भी है 100 यहाँ पे, ठीक है. We don't have to assume. It is then immediately transferred to the 0.14 kg copper calorimeter containing 0.25 kg water at 20 degree Celsius, है ना? तो 20 डिग्री पर है उसमें water. The temperature of water rises and attains the steady state 23. जब हमने hot ball डाल दिया उसमें 100 डिग्री वाले, तो सब सिस्टम का टेम्परेचर 27 हो गया. Calculate the specific heat capacity of aluminium.
बाकी जो है यू हैव टू सी फ्रॉम टेबल है ना, एल्युमिनियम की जो है कैलकुलेट करना है। हीट गिवन बाय दिस, जो स्फीयर है दो पार्ट में डिवाइड होगी, एक तो वाटर को जाएगी और दूसरी कैलोरीमीटर, दोनों। तो हीट गिवन बाय सॉलिड स्फीयर निकाल लेते हैं। हीट गिवन बाय द स्फीयर कितना है, उसका 100 से कहाँ पे सेटल होगा, 23 पे, ms डेल्टा टी। मास इज गिवन, एल्युमिनियम का टेबल में देखना पड़ेगा, इफ इट इज नॉट गिवन तो यहाँ पे देखो। अच्छा कैलकुलेट ही करना है इसका, तो कैलकुलेट करना है। तो ms डेल्टा टी मास दिया है, इसका कैलकुलेट करना है। टेम्परेचर जो है डिफरेंस इज 77, 100 से 23 पर आ गया है ना, तो 77। नाउ अमाउंट ऑफ हीट गेन बाय वाटर एंड कैलोरीमेट्रिक है ना, m2s2 डेल्टा T2 m3s3 है ना, तो इसमें डेल्टा T2 चेंज ऑफ टेम्परेचर तो इक्वल है। हाई टेम्परेचर माइनस लो लेना पड़ेगा, माइनस नहीं करना। लॉस में भी हाई टेम्परेचर से लो पे आएगा। गेन में जो जो टेम्परेचर राइज हुआ दैट माइनस इनिशियल, तो यहाँ पर टेम्परेचर गेन कितना हो जाएगा दोनों का, 3 डिग्री हो जाएगा, तो वो कॉमन ले लिया बाहर है ना। तो मास ऑफ द वाटर कितना था, 0.25 kg था क्या, वाटर कितना है, हाँ। और उसकी स्पेसिफिक हीट ये देखो इन्होंने डायरेक्ट लिखी है, हमने पीछे सीखी थी 4004.186 था ना, 4.18 लिया, 10⁻³ इधर लगा दिया। और कैलोरीमीटर का कंटेनर का मास इतना है, और कॉपर का है तो उसका भी टेबल में देखा उन्होंने ना, कॉपर का हम लोग डिस्कस कर रहे थे टेबल में। कैन यू सी इट अगेन, क्वेश्चन पेपर में दिया होगा, कॉपर इज वेयर 386.4 है, तो 386 लिया ठीक है। डेसिमल लगा दिया तो 10⁻³ कर लिया इसको, इसमें भी 10⁻³ है, वो सॉल्विंग में भी हो जाएगा। ये टेम्परेचर डिफरेंस है, इक्वेट कर देंगे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से। हीट गिवन इज इक्वल टू हीट ऑब्टेन्ड, इसने हीट दी, इन दोनों ने हीट रिसीव की, सॉल्व कर लेंगे तो एल्युमिनियम का 0.911 किलो 911 जूल्स पर केजी पर केल्विन आएगा। ऑलराइट, इस क्वेश्चन को और सिंपल बनाने के लिए एक और क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में दिया, देखो क्लियर, ये तो सॉल्व एग्जांपल है। अभी क्या होता है कि ये कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस को कम करने के लिए व्हाट दे एज्यूम वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट, मतलब अगर कैलोरीमीटर की हम न कैलकुलेट करें, उसकी जगह एक्स्ट्रा वाटर एज्यूम कर लें कैलकुलेशंस इजी करने के लिए। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर दिस, somewhere ahead it is given, let me see where it is। जैसे ये एक मिनट, हाँ ये क्वेश्चन है, देखो दिस इज द क्वेश्चन। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल 0.2 kg ब्लॉक है और उसको 150 पे हीट किया, ड्रॉप्ड इन द कॉपर कैलोरीमीटर, इसके अंदर डाल दिया इसको, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन जो अभी किया हमने, कंटेनिंग वाटर, कैलोरीमीटर का उन्होंने वाटर इक्विवेलेंट दे दिया, मतलब इस कैलोरीमीटर का सेम इफेक्ट होगा, मतलब ये इसको ना लें, इसकी जगह इतना वाटर बढ़ा के ले लें, ऑलरेडी वाटर है उसमें और इसका वाटर इक्विवेलेंट इतना बोला, मतलब ये कैलोरीमीटर का इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा इफ यू इंक्रीज द, मतलब ये वाटर उतनी ही हीट एज्यूम कर अब्सॉर्ब करेगा जितना कैलोरीमीटर कर रहा है। तो दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाटर इक्विवेलेंट, ठीक है। कंटेनिंग, तो इसमें वाटर कितना है, देखो वाटर दिया है 150 cc
सेंटीमीटर क्यूब को सीसी बोलते हैं. That will be 150 ग्राम. That will be 0.150 kg. ठीक है. नेट वाटर पे कितना हो जाएगा? अगर कैलोरीमीटर का हमें इफेक्ट न्यूट्रलाइज करना है तो उसका वाटर इक्विवेलेंट ऐड कर देंगे. फिर उसकी स्पेसिफिक हीट वगैरह नहीं लेनी पड़ेगी जैसे पिछले क्वेश्चन में लेनी पड़ी थी. तो 0.150 प्लस 0.025, तो ये कितना आ रहा है? 0.175 kg वाटर ले लेना है. तो अभी दो बॉडी ले जाएगी. ये ब्लॉक जितनी हीट देगा वाटर उतनी एब्जॉर्ब कर लेगा. बस, बाकी तो वैसे ही ये क्वेश्चन है. टेम्परेचर सेटलमेंट कहाँ पे हो रहा है? 40 पर. इसका कितना ड्रॉप होगा? 110 डिफरेंस. इसका कितना गेन हो जाएगा? 13. डेल्टा टी इसका 13 बस. यू ट्राई दिस. वाटर इक्विवेलेंट का मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया. नाउ इट इज सिमिलर क्वेश्चन. ठीक है. 47 पेज पर. तो ये क्वेश्चन नंबर 14 है. whenever you come across the water equivalent, it is the water equivalent of any body which will, after receiving the same heat, its temperature will be increasing same as that of the body. So amount of water needed is called water equivalent of that body. ठीक है. तो ये क्वेश्चन नंबर 14 है. वापस चलते हैं फिर हम लोग पेज 47 पे था. Can we have tomorrow class from 2:20 to 3:45 आफ्टरनून में? और इवनिंग में नहीं रखेंगे फिर क्लास? Yes, sir. I'll send you the other link, not Okay, this sir. link. Other link भेजेंगे, है ना? तो वो Okay, sir. कंबाइन क्लास हो जाएगा. उसमें फिर क्या होगा? मॉर्निंग इवनिंग चलना है. इफ यू कैन अटेंड दैट मॉर्निंग इवनिंग क्लास, ये वाला लेक्चर कल मॉर्निंग में उनका कवर हो जाएगा. तो संडे तक काफी कोर्स कवर कर सकते हैं हम लोग. तो लेट अस सी टुमारो. पहले we'll join in that 1.5 hour almost class रहेगा. तो we can cover lot of things, and evening we will not have, क्योंकि उनका भी Okay, सेम टॉपिक चल रहा है. ठीक है. ओके. तो we'll continue further. Let us see आगे क्या है. तो ये क्वेश्चन जो है you can complete, and this is done. Similar question was asked in JEE also. ये almost similar question था, solid example जैसा. So you can get in examination similar question. देखो ये question भी same topic का है. See, ये 10 kilowatt drilling machine is used to drill the hole. Bore means hole in a small aluminum block of the mass 8 kg. How much is the rise in temperature of the block in 2.5 minutes? If assume 50% power is used to heat up the machine itself. 50% लॉस हो गई, 50% यूज हो गई उसमें ब्लॉक में. ठीक है. तो स्पेसिफिक तो 50% ऑफ पावर कितनी होगी? 10/2, दैट इज 5 किलोवाट. पावर इज इक्वल टू हीट अपॉन टाइम. तो हीट इज इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. पावर इनटू टाइम इज इक्वल टू हीट. बट हीट इज इक्वल टू एमएस डेल्टा टी, है ना? हीट इज इक्वल टू एमएस डेल्टा टी. तो पावर जो है 5 यहाँ पे लिख देंगे हम. 5 किलो कितना होगा? 5 इंटू 10⁻3. टाइम कितना है निकालना है? क्या टाइम? टाइम निकालना है. नहीं, हाउ मच इज द राइज इन टेम्परेचर. टाइम दिया है क्या? 2.5 मिनट्स. पावर 10 to the power 2.5 मिनट्स है ना, 60 हो जाएगा टाइम, है ना? 2.5 into 60 seconds. Mass of the block is given, yes, 8 kg. और उसकी स्पेसिफिक हीट दी है 0.9. अच्छा, ग्राम में दिए क्या? यहाँ भी किलो लिखना पड़ेगा, ये भी किलो हो जाएगा. 10 to the power 3 करना पड़ेगा. ठीक है कि नहीं? किलो में करना है कि नहीं? बिकॉज मास किलो में ले रहे हैं. इफ यू राइट के हियर, यहाँ भी के आ जाएगा. ठीक है. 10 to the power 3 हो गया.
चेंज ऑफ टेम्परेचर निकालना है ना, बस ऑल द वैल्यूज आर गिवन। टाइम मिनट में था, सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, बिकॉज पावर जो है जूल्स पर सेकंड होती है, सेकंड सेकंड विल गेट कैंसल, जूल में अपना आंसर फिर ऐसा यूनिट में आ जाएगा। चेंज ऑफ टेम्परेचर विल बी 103 डिग्री सेल्सियस और 103 केल्विन, चेंज इक्वल होता है दोनों में। फिफ्टी परसेंट कहाँ चलेगी, उसका डेल में ही, डेल को ही हीट अप करने में खर्च हो गए। ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू हीट अपन टाइम वाला फॉर्मूला, वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है, वर्क इज द एनर्जी ओनली, एनर्जी पर यूनिट टाइम। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे मैंने बताया ना किलो में कन्वर्ट करना है, देखो ग्राम में था ना, या ऊपर नीचे किलो के से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऐसे प्रॉपर यूनिट में पुट करना पड़ता है इसमें। नाउ चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर, सपोज ये आइस है कोई इतनी, ठीक है, उसको तुम हीट दो, पहले क्या होगा, हीट देने से आइस को वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना, तो सॉलिड से लिक्विड में बन जाएगी, फिर उसको बोलते हैं मेल्टिंग, है ना। इफ यू कंटिन्यू टू गिव द हीट, टेम्परेचर विल राइज टिल इट बिकम्स 100 डिग्री सेल्सियस एंड देन स्टार्ट बॉइलिंग एट 1 एटमॉस्फेयर। तो बॉइलिंग में क्या होता है, फिर से टेम्परेचर, जब मेल्टिंग होता है टेम्परेचर बिकम्स कांस्टेंट, जब तक पूरी आइस मेल्ट नहीं होती तब तक आइस एंड वाटर का टेम्परेचर 0 रहेगा। फिर जब बॉइलिंग स्टार्ट होती है तो टेम्परेचर बिकम्स कांस्टेंट, इफ यू पुट द थर्मामीटर इट विल कंटिन्यूअसली शो 100 डिग्री। जब पूरा वाटर बॉयल हो गया, स्टीम बन गया, देन टेम्परेचर विल अगेन राइज, है ना। तो जैसे पहले मेल्टिंग में वाटर एंड आइस कैन को एग्जिस्ट, फिर टेम्परेचर 100 तक जाएगा, है ना, फिर वेपोराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, टेम्परेचर will not be increasing, all the heat given will be changing the state of the matter, है ना। एंड यहाँ पर वेपर प्लस वाटर बोथ कैन coexist at 100 degree Celsius. After that, now vapor will be formed, temperature will increase, जब पूरी वेपर बन जाएगी, so that's how the state of matter changes. तो इसमें क्या दो पॉइंट है, जब मेल्टिंग हो रही है या वेपोराइजेशन हो रहा है तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है till all gets melted or all gets vaporized. टेम्परेचर जब स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है ना, तब हीट सप्लाइड इज will not be increasing the temperature, but that heat will be changing the state of the matter. सॉलिड से लिक्विड बनाएगा, लिक्विड से वेपर बनाएगा, उस समय टेम्परेचर इंक्रीज विल बी हाल्टेड, बाद में बढ़ता है, फिर सारी एनर्जी उसकी स्टेट ऑफ मैटर में चली जाती है। तो वैसे तो आइस 0 डिग्री पे मेल्ट होती है, बट यू इंक्रीज द प्रेशर, यहाँ पे वायर हैंग कर दो, मास बांध दो, उसमें प्रेशर बढ़ जाएगा, यहाँ पे मोर देन 1 एटमॉस्फेयर, तो वायर विल पियर्स इनटू दैट, और इधर से नीचे से निकल आएगी, और अगेन ये रीफ्रीज हो जाएगा, बिकॉज प्रेशर बढ़ने से फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, से -5 डिग्री पर मेल्ट हो जाएगी ये, वायर विल पियर्स थ्रू इट, और फिर रीफ्रीज हो जाता है वापस, बिकॉज प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर, 0 डिग्री पर -5 is less than 0, again it will be refreezing. So this type of process is called refreezing. Refreezing again is called regulation, REGELATION. तो ice skating is possible through this only. Ice skating में क्या प्रेशर पड़ता है, आइस मेल्ट हो जाती है, it becomes water that provides the liquid lubricant, तो उससे फिर स्लाइडिंग इजी हो जाती है, फिर से रीफ्रीज हो जाते हैं वो, ice again refreezes. So that is how change of state of matter can take place when we increase the pressure, melting point comes down, boiling point goes up. प्रेशर कुकर में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है प्रेशर बढ़ाने से, मेल्टिंग पॉइंट कम्स डाउन, तो दोनों दूर चले जाते हैं अपने उससे, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया मैंने, अंडरस्टैंड दिस एक्सपेरिमेंट।
इसमें वाटर ले लिया, थर्मामीटर लगा दिया, यहाँ से ओपनिंग है, स्टीम कैन गो आउट। तो जब यहाँ पे हीट देंगे तो टेम्परेचर विल राइज, 100 पे बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, इट विल स्टार्ट बॉइलिंग। फिर क्या करो, उसको ब्लॉक कर दो, यहाँ पे कॉर्क लगा दो, बॉइलिंग विल स्टॉप। व्हाई? बिकॉज प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट गोज अप, एज इन केस ऑफ प्रेशर कुकर, कुकिंग इज इजी देयर in pressure cooker. If you are at mountain, तो boiling will start at say 80 degree itself या 70 degree itself. Pressure कम हो जाता है atmosphere का, तो boiling takes place early, तो cooking becomes more difficult there. तो pressure cooker के बिना तो दाल गलती नहीं वहां पर, mountains पर बहुत टाइम लगता है उसको, because more the temperature easy is the cooking. 70 पे अगर बॉयल हो रहा पानी तो बहुत टाइम लगाएगा बॉयल उसको कुकिंग में। तो moment you close it, boiling stops, and again after some time boiling starts, high pressure पे high boiling point, ठीक है। Okay, this is the one point. Now what you do, अभी इसको निकाल दो, ये भी निकाल दो, थर्मामीटर भी निकाल दो, ठीक है। 100 डिग्री पे आने दो, लेट 100 डिग्री, ड्रॉप इट टू 100, हीट बंद कर दो, 100 पे आ गया, यू नो 100 डिग्री, थर्मामीटर बाहर कर दो ये भी, और इसको ब्लॉक कर दो पूरा कॉर्क लगा के, इसको इन्वर्ट कर दो, ठीक है। ठीक है, अभी इसमें पानी ऐसे 100 पर, यहाँ से आइस डालो, आइस पोर कर दो इधर, तो यहाँ पर जो वेपर थी वो कंडेंस हो जाएंगी, प्रेशर विल ड्रॉप, दिस विल स्टार्ट बॉइलिंग अगेन, लो उस पे से 80 डिग्री पर बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती, बिकॉज प्रेशर इज रिड्यूस, वेपर गेट्स कंडेंस्ड एयर, बॉइलिंग विल अगेन स्टार्ट, which was stopped at less than 100 degree. Suppose इसको let it come at 90 degree है ना, बाद में थर्मामीटर निकाल लो, you know it is 90 degree, boiling has stopped, इन्वर्ट करो, आइस डालो, फिर से प्रेशर कंडेंसेशन will reduce the pressure above the water, it will start boiling again, जैसा कि माउंटेन्स पे होता है। This is the experiment, you can do it in lab, ठीक है। एंड एक और पॉइंट है, देखो, चेंज फ्रॉम, हमने देखा था कि पहले लिक्विड, पहले मेल्टिंग होती है, फिर टेम्परेचर बढ़ता है, फिर वेपराइजेशन होता है, ऐसे ग्राफ आता है। बट अगर सीधे सॉलिड से, ये सॉलिड है, इससे वेपर बन जाए तो इज इट पॉसिबल? यस, इन सम ऑफ द मटेरियल इट इज पॉसिबल। चेंज फ्रॉम द सॉलिड स्टेट to the vapor state without passing through the liquid state is called sublimation. Chemistry में शायद पढ़ा भी होगा। And substance is set to sublime. Dry ice होती है, solid CO2, वो solid से सीधे vapor बन जाता है। It is called sublimation. It is not converting into what is called liquid. But can the water make the same? What ice जो सीधे वेपर करा सकते हैं क्या? Yes. If you reduce the pressure such a low temperature, ice will be directly converting to the vapor without going to the liquid state. Let's see what is the temperature and pressure. ठीक है, तो sublimation समझ में आ गया, direct converting from solid to vapor. So let's see, is it possible in water also? Yes, if we have the very low pressure. तो ट्रिपल पॉइंट, ये एक्चुअली में वो एक्स्ट्रा पॉइंट है अपने बुक में, एनसीईआरटी बुक में, बट सम ऑफ द स्कूल्स दे टीच। सो लेट्स सी व्हाट इज द ट्रिपल पॉइंट। देखो, यहाँ से बी से ओ तक सॉलिड है, एंड ओके, ये पूरा सॉलिड है यहाँ तक, और ये लिक्विड फेज है, इधर वेपर है ना। तो व्हेन वी, this is the point where all three states can coexist, called triple point. Triple point is of any substance is the point where all three states of matter can coexist. So for water it is at very low pressure, देखते कितना है, टेम्परेचर कितना है, 0.01। ये टेम्परेचर तो ठीक है, this temperature we can achieve,
but pressure is very small, 0.006 low pressure है. तो इस पे if you bring the water, you can produce this much pressure inside the container in which water is kept, and यहाँ से 0.01 temperature उसका maintain करो. तो यहाँ पर all three phases are possible, but if you decrease the pressure further and temperature further also, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से water will be direct, it will be in ice condition, ice रहेगा, not water, solid है, तो ice रहेगा, ice से सीधे vapor में चला जाएगा. If you maintain the temperature less than this, pressure less than this. अगर इसके ऊपर होगा तो then क्या होगा, suppose यहाँ पे है, तब solid से liquid and liquid से vapor, इससे below. This is the point where all three phases can coexist. है ना? ये यहाँ पे क्या होगा, solid liquid phase रहेगी, यहाँ पर solid and vapor phase रहेगी, और यहाँ इस line को ये liquid vapor. या अगर this much temperature is there and pressure is this much, तो solid से पहले liquid बनेगा, फिर उसके बाद temperature बढ़ाने से vapor में convert होगा. This is a point, triple point. वाटर का quite a low value, देखते हैं कहाँ पर कितना लिखा हमने separate. हाँ, pressure is 6.11 into 10⁻³ Pascal. Temperature is 273.16 Kelvin. That is very close to the 0.1 degree Celsius, almost 0 degree Celsius. So this point is called triple point, where all three phases can coexist. ठीक है. ये sublimation curve कौन सा होगा, इसमें देखो direct converting, OB is the sublimation curve. Direct इधर से इधर आ सकते हैं without going into the liquid phase at low temperature and low pressure. ठीक है. Now important point है ये calculations numericals के लिए, latent heat of the substance. Do you know the meaning of latent heat? Latent means hidden, not visible, not known. Hidden है ना? So why do we call it latent heat? Because temperature doesn't rise. Suppose ice है ना? Give the ice, you give the heat, it is 0 degree Celsius, it will maintain 0, start melting. इसमें पानी में convert होने लगेगा. Till it completely converts into the water, temperature will be 0 degree Celsius. Where does the heat goes? It is changing the state of matter. Solid में molecules जो हैं, they are closely packed, and almost liquid में भी closely packed, but they are free to move now. उनके bonding जो है weak हो गई, and intermolecular forces become weak after getting the energy, and they are free to move, and there may be slight change in volume also. ठीक है. So latent heat is, and how do we define it? Amount of heat per unit mass. 1 kg ice का पूरा मेल्ट करने के लिए कितनी हीट लगेगी, उसको हम latent heat बोलते हैं. सिंबल इज L, सिमिलर टू द एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम का सिंबल भी हमने ये लिया था. तो हीट पर यूनिट मास, m kg आइस है तो m से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली 1 kg आइस की हीट मिल जाएगी वो. तो Q/m, तो Q इज इक्वल टू ml. इसमें देखो डेल्टा टी नहीं आ रहा है, पहले वाला फार्मूला हीट का हमने क्या पढ़ा था, ms डेल्टा टी. जब टेम्परेचर चेंज होता है तो ये यूज करते हैं. जब उसका स्टेट ऑफ मैटर, जब उसकी स्टेट चेंज होती है लिक्विड टू सॉलिड, आई मीन बोथ वे इट कैन गो, सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड एंड लिक्विड टू वेपर और वेपर टू लिक्विड. ठीक है. तो उस समय ml वाला फार्मूला लगेगा. तो L will be different from solid to liquid and liquid to vapor, दोनों different होती. Value of L depends upon the pressure also, of course. Pressure dependent, but generally we talk about it 1 atmosphere. जो value लिखेंगे, they will be for 1 atmosphere pressure. STP, standard temperature and pressure. So let's see. This is important topic. इसकी dimension भी latent heat की लिख लेना अपने आप. Latent heat for solid liquid state is solid to liquid state is called latent heat of fusion. And fuse होते हैं, melt होता है ice या दूसरा solid. And then liquid to gas, vapor में convert होता है तो उसको latent heat of vaporization बोलते हैं. Symbol भी F लगा दिया fusion के लिए. Ice की latent heat of fusion is 80 kilocalorie per kg.
1 kg आइस को मेल्ट करने के लिए 80 किलो कैलोरी लगेगी, एंड जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 4.2 कर दो, तो 3 क्लोज टू 333 किलो जूल्स पर केजी। क्वाइट हाई किलो है, यहाँ पर 10 3 भी करना पड़ेगा, इट कम्स इन द लैक्स। एंड latent heat of vaporization for water is, वाटर के लिए for water वाटर वेपर्स, स्टीम के लिए है ना, वेपर और स्टीम। ऑफ कोर्स वेपर ऑफ वाटर इज कॉल्ड स्टीम। तो स्टीम का latent heat 536, नियरली 6, मोर देन 6 टाइम्स हो गए, क्योंकि इसमें क्या वेपर में मॉलिक्यूल्स को और लार्ज सेपरेशन करना है मॉलिक्यूल्स, दे हैव टू ऑलमोस्ट सेंड टू दैट डिस्टेंस, दे डोंट इंटरैक्ट विद ईच अदर, मोर एनर्जी कंटेंट, nearly 6.5 times energy content. So steam has got lot of energy content in that, therefore initially steam engines used to be there for railway and ships, but उसमें complicated थोड़ा रहता है, कोल चाहिए, वाटर वेपर बनाना है, स्टीम बनाना है, तो थोड़ा सा पॉल्यूशन ज्यादा रहता है। किलो कैलोरी में है, किलो कैलोरी पर केजी, तो क्लोज टू 540 लेते कैलकुलेशन, एग्जैक्ट वैल्यू इज 536, बट न्यूमेरिकल में जनरली 540 ली जाती है, बट अदरवाइज 536। इसको कैलोरी में कन्वर्ट करना है, जूल में, किलो जूल में कन्वर्ट करना है, 4.2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2260 किलो जूल्स पर केजी। तो sometimes it is given, but better just we have to remember at least these values so that we can convert it. इसकी 80 है, इसकी 536 और 540, बाद में 4.2 से मल्टीप्लाई करके जूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मे बी गिवन है। तो देखो फिर से स्टेट ऑफ मैटर का ये ग्राफ, इधर हीट है, इधर टेम्परेचर है, तो अगर आइस है लेस देन 0 पर, सपोज -10 डिग्री सेल्सियस पर है, जब हीट देंगे पहले उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, 0 पर आ जाएगा, मेल्टिंग शुरू हो जाएगी, फेज चेंज होना शुरू हो जाएगा, फिर उसको लिक्विड में जब 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, देखो फिर उसका वेपराइज, फिर से फेज चेंज, एंड दिस विल बी लार्जर बिकॉज इसका 540 है और ये 80 है, दिस वेट इज लेस हीट, मोर हीट, यहाँ तक करीब। तो यहाँ पे उन्होंने डिसकंटिन्यूटी दिखाया, इसका मतलब नॉट टू द स्केल, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ स्पेस, इसको पूरा ऐसे नहीं दिखाया। एंड देन अगेन इट विल, स्टीम का टेम्परेचर बढ़ेगा, ये एंगल जो है, दिस एंगल, सपोज ये वी आर टॉकिंग अबाउट दीज एंगल्स अल्फा, बीटा एंड गामा, तो ये जो है अनइक्वल होंगे, दे विल डिपेंड अपॉन द स्पेसिफिक हीट। वाटर की स्पेसिफिक हीट जो है ज्यादा होती है, इसकी जो स्पेसिफिक हीट है वेपर की एंड आइस की नियरली हाफ होती है, इसकी 4000 के आसपास है, 4200 है, ये 2000 के आसपास रहेगी, ये भी 2000 रहेगी, तो इनका एंगल मोर होगा, दिस एंगल विल बी लार्ज बिकॉज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू ms डेल्टा टी, क्यू इधर है एक्स एक्सिस पे, चेंज ऑफ टेम्परेचर वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस को लेफ्ट में लिखना पड़ता है, तो डेल्टा क्यू अपॉन ms, मोर द स्पेसिफिक हीट लेस विल बी द स्लोप। अच्छा, मोर द स्पेसिफिक हीट कहाँ से लाएंगे, स्लोप लिखना पड़ेगा ना, एक मिनट, स्लोप क्या है इसका, डेल्टा टी इज इक्वल टू, ऊपर क्या था, डेल्टा क्यू अपॉन ms, ये तुम्हारा हो गया y, ये x हो गया, क्यूब इज x, तो स्लोप जो है, स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू s, मोर स्पेसिफिक हीट लेस स्लोप, तो ये एंगल कम रहेगा ये वाला एज कंपेयर टू दिस, इसमें दिखाया भी देखो मोर एंगल दिखता है, दिस एंगल विल बी लेस, ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है, इट्स नॉट गिवन इन योर टेक्स्ट बुक बट यू शुड नो this angle will be small, more the specific heat less will be the angle। फिर से बताऊं क्या एंगल का फाइंड, देखो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू ms डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा टी वाई एक्सिस पे है तो उसको लेफ्ट में लाना पड़ता है, ये ms हो गया डेल्टा क्यू, तो दिस इज y इज इक्वल टू mx, तो स्लोप इज, अच्छा यहाँ पर
मास है तो इसको हम स्लोप लिखते हैं, स्लोप मीन्स tan थीटा होता है। Slope inversely proportional to s. More the value as less will be the tan theta. एंगल भी छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द एक्स्ट्रा पॉइंट, यू मे नीड इट इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ब्रेक करके फिर से स्टार्ट करें। Okay, sir. Because I think 1 or 2 minutes are left. Okay, so this is important points. Okay.